When the world first heard about the SR-72, many thought it was just another elaborate concept that would never work out. But with more information coming to light, it's becoming more obvious that Lockheed Martin was working on something truly revolutionary, something that would put that SR-71 to shame. So what's really going on behind the closed doors of the Skunk Works? Is it true that the next step into the future of American aviation has already been taken only in secret? Join us as we unveil the new SR-72 upgrade, a 5+ generation jet. The SR-72 Darkstar, Lockheed Martin's successor to the legendary SR-71 Blackbird, is finally emerging from the shadows. Building on the legacy of the SR-71 Blackbird, the SR-72 Darkstar is said to be part of a top-secret U.S. Air Force project to dominate the skies and project power to the enemies. Let's get some things clear about this futuristic fighter jet. But before that, let's take a glimpse at the plane about to lose its place as the Lord of the Skies, the SR-71 Blackbird. The SR-71 Blackbird is one of history's great aircraft. While operational, it was truly an amazing spy plane that broke speed record after speed record. But the SR-71 was also remarkably expensive to operate, which is why after the Cold War ended, Congress put the Blackbird spy plane to sleep. The legendary Blackbird was a long-range reconnaissance plane with remarkable performance characteristics. Equipped with two Pratt & Whitney J58 turbojet engines, this device could reach a speed of Mach 3.2 and fly at an altitude of 85,000 feet, which forced the pilots to put on spacesuits so as to not simply lose consciousness. To put into context, commercial planes are around 35,000 feet. The SR-71 was so fast that to evade surface-to-air missiles, the jet would simply accelerate to outrun missiles. The Blackbird was specialized and distinct to its very last component. The jet needed to do things no other jet could do. As a result, the SR-71 shared roughly zero commonality with any other airframe. So building, operating, and maintaining the plane also required specialized and distinct components. That's expensive and logistically complicated. For example, the aircraft had the smallest radar cross-section available to Lockheed at the time of its development. So on a closer look, the Blackbird is actually an early attempt at stealth design. The SR-71 paint was a black ferrite iron radar-absorbing paint that radiated heat from the surface many times more efficiently than bare metal. Additionally, it reduced skin temperature, thermal stress on the airframe, and gave the Blackbird an even more menacing appearance. संरचना का लगभग 85% हिस्सा टाइटेनियम से बना था और बाकी पॉलीमर मिश्रित सामग्री से। अनावश्यक अपव्यय से बचने के लिए लॉकहीड के विशेषज्ञों ने एक आसानी से मशीनीकृत टाइटेनियम मिश्र धातु का इस्तेमाल किया जो कम तापमान पर नरम हो जाती है, लेकिन कई मैक की गति से उड़ान के दौरान उत्पन्न होने वाले उच्च तापमान के कारण उपकरण के डिजाइन और संचालन के लिए एक विशेष दृष्टिकोण की आवश्यकता थी। धड़ के पैनल जमीन पर विमान के साथ ढीले ढाले फिट होने के लिए बनाए गए थे। एयरफ्रेम के कई इंच तक तापीय विस्तार के कारण गर्म होने पर उचित संरेखण प्राप्त किया गया। इसके कारण और उड़ान के दौरान अत्यधिक तापमान चक्रों में रिसाव मुक्त रहने वाले ईंधन सीलिंग सिस्टम की कमी के कारण विमान से उड़ान भरने से पहले ही JP-7 ईंधन जमीन पर लीक हो गया, जिससे ग्राउंड क्रू परेशान हो गए। SR-71 की त्वचा के मुख्य भाग चिकने होने के बजाय लहरदार थे, जिसके कारण वायुगतिकी विशेषज्ञ ब्लैकबर्ड को उसकी अनोखी लहरदार एल्यूमिनियम त्वचा के कारण मजाक में मैक 3 फोर्ड ट्राइमोटर कहने लगे। लेकिन एक नए विमान के लिए यह बिल्कुल उचित था, क्योंकि उच्च तापमान से चिकनी त्वचा फट सकती थी या मुड़ सकती थी, जबकि लहरदार त्वचा ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रूप से फैल सकती थी, जिससे उसकी अनुदैर्ध्य शक्ति बढ़ जाती थी। SR-71 को दुश्मन के रडार पर न पकड़ पाने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया था और इसने इसमें उल्लेखनीय सफलता हासिल की। इंजीनियरों ने तो यहां तक कि निकास प्लम की रडार दृश्यता को कम करने के लिए सीजियम आधारित ईंधन योजकों का भी इस्तेमाल किया। 1974 में SR-71 ने लंदन और न्यूयॉर्क के बीच सबसे तेज उड़ान का रिकॉर्ड बनाया। 1976 में यह अपने पूर्ववर्ती निकट संबंधी लॉकहीड YF-12 के बाद सबसे तेज वायु श्वास मानवयुक्त विमान बन गया। 225 तक ब्लैकबर्ड के पास अभी भी तीनों विश्व रिकॉर्ड हैं। हालांकि जैसा कि पहले बताया गया है, यह पौराणिक विशालकाय कार पूरी तरह से हरी नहीं थी और जल्द ही इसकी ऊंची कीमत चुकानी पड़ी। SR-71 को चलाने में प्रति घंटे $200,000 तक का खर्च आता था, जब इसके सभी सहायक खर्चों को भी जोड़ दिया गया। इस लागत का एक हिस्सा इस तथ्य से उपजा था कि यह एक छोटा विशेष बेड़ा था। निर्मित जेट विमानों की कम संख्या 32 और इसके अनोखे डिजाइन के कारण SR-71 का रखरखाव बहुत महंगा था। इसके लिए एक विशेष रसद ट्रेन की भी आवश्यकता थी, खासकर इसके विदेशी ईंधन के लिए, जिसकी लागत 1989 में प्रति घंटे $18,000 थी।
कम से कम यही कारण था जो इस टोही विमान का संचालन बंद करने के कांग्रेस के फैसले का एक आधार बना। ब्लैकबर्ड को सोवियत संघ के पतन से भी पहले 1990 में ही सेवानिवृत्त कर दिया गया था। हालांकि अंततः कांग्रेस के आग्रह पर वायुसेना ने 1995 और 1998 के बीच कुछ समय के लिए इनमें से 3 जेट विमानों को पुनः सक्रिय कर दिया। The US Air Force finally retired the SR-71 aircraft in 1998, although NASA operated the last 2 airworthy aircraft until 1999, after which they took their final bow and went to rest. As the years passed without any replacement for Blackbird, questions began to rise, and it was then that the talks of a hypersonic successor to the Blackbird became more and more pressing. Needless to say, the task of finding a suitable replacement was not an easy one, and it's quite understandable. According to some sources, over the years of service, the SR-71 managed to outrun more than 4,000 missiles fired at it. It operated with virtual impunity even in the most hostile airspaces. That's what the US needs to replace. Little wonder it's a difficult task. Many people believe that the first rumors about the SR-72 appeared in 2007, but the truth is that it had in fact happened in the very early 2000s, when Skunk Works realized that the era of the SR-71 had come to an end and the time had come to prepare a worthy replacement for it. 2006 to 2007 are very relevant years for Lockheed engineers, mainly because in that period they collaborated with the Aerojet Rocketdyne team and had been working on an engine capable of hypersonic speed since this time. Aerojet Rocketdyne applied their scramjet technology, supersonic combustion ramjet, to the engine design of the SR-72, since it was supposed to receive an advanced air-breathing propulsion system which would be able to work equally well not only at subsonic and transonic, but also at supersonic and even hypersonic speeds. The SR-72 is not just a fast plane, it's an entirely new concept aircraft, the first of its kind. It is designed to travel at more than 4,000 meters per hour, far greater than Mach 5. To put into context, that speed is fast enough to fly across the Atlantic Ocean in just over an hour. And unlike the Blackbird, which is manned, the SR-72 is free. It is completely unmanned and reusable, a feature many had applauded since if capable of flying through the most treacherous airspace on the planet, it won't put a pilot at risk. We're talking about a jet so fast and so autonomous, it can outrun the most sophisticated surface-to-air missile defenses. That is where the future is taking us with the development of the SR-72. But what's its actual purpose? The jet will break speed, records for sure. But it is not just about that. It is built for strategic reconnaissance, surveillance, and even attack missions deep behind enemy lines. Thanks to its hypersonic speed, the enemy in question may not even realize it was there, and a battle might be over before it even begins. इस लड़ाकू विमान की शाब्दिक परिभाषा है पकड़ने के लिए बहुत तेज, रोकने के लिए बहुत चालाक। SR-72 का इस्तेमाल हाइपरसोनिक मिसाइलों जैसे कि उच्च गति वाले हमलावर हथियार के लिए हमलावर वाहक के रूप में भी किया जा सकता है, जिसका विकास वर्तमान में किया जा रहा है। इसका मतलब है कि यह विमान न केवल आकाश में जासूसी करता है, बल्कि एक भारी हथियारों से लैस हमलावर ड्रोन भी है। उन्नत सुविधाओं वाले बाज की बात करें, यह नया विमान आधुनिक युद्ध कला में एक बड़े बदलाव का प्रतीक है। दूसरे लड़ाकू विमानों से इसकी तुलना करें तो धीमे और दृश्यमान को तेज और गुप्त से बदल दें। गति का मतलब किसी निर्धारित लक्ष्य तक तेजी से पहुंचने से कहीं ज्यादा है। इसका मतलब है दुश्मन को अचानक चौंका देना। इसका मतलब है युद्ध के निर्णय चक्र को बाधित करना। नए SR-72 के साथ अमेरिकी कमांडर रिकॉर्ड समय में खुफिया जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं या किसी विरोधी को इसकी सीटी की आवाज पर प्रतिक्रिया करने का समय मिलने से पहले ही हमला कर सकते हैं। इस बात को लेकर अटकलें थीं कि क्या यह भविष्यवादी विमान किसी प्रकार का मिथक था, लेकिन 2013 में लॉकहीड मार्टिन स्कंक वर्क्स ने आखिरकार लॉकहीड मार्टिन की वेबसाइट पर SR-72 के विकास की आधिकारिक पुष्टि की, जिसमें कहा गया था कि ब्लैकबर्ड का बेटा अपने पिता से दोगुनी गति से उड़ेगा, यानी मैक 6 तक की गति से। टीम ने यह बेबुनियाद नहीं कहा। उन्होंने इस साहसिक बयान का समर्थन यह कहकर किया कि SR-71 को 20वीं सदी की तकनीक का उपयोग करके स्लाइड रूल और कागज का उपयोग करके विकसित किया गया था, इस बात पर जोर देते हुए कि यह प्रोग्राम कोड की लाखों लाइनों से नियंत्रित नहीं था और कंप्यूटर चिप्स पर नहीं चलता था। लेकिन दूसरी ओर SR-72 एक बिल्कुल अलग पीढ़ी का विमान होगा। उसके 3 साल बाद ही लॉकहीड मार्टिन की CEO मर्लिन हेवसन ने नई जानकारी दी कि कंपनी एक ऐसी तकनीकी सफलता के कगार पर है जिससे SR-72 न केवल मैक 6 की गति तक पहुंच पाएगा, बल्कि $8 अरब से भी कम में F-22 रैप्टर के आकार का एक हाइपरसोनिक प्रोटोटाइप भी बना सकेगा। और कुछ ही समय बाद 2018 में लॉकहीड मार्टिन के उपाध्यक्ष जैक ओबैनियन ने 2013 के लेख की जानकारी की फिर से पुष्टि की और बताया कि कैसे एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग और कंप्यूटर मॉडलिंग के क्षेत्र में प्रगति वास्तव में सन ऑफ ब्लैकबर्ड के अस्तित्व की कुंजी बन गई।
सिर्फ कागजों पर ही नहीं बल्कि अब हकीकत में भी। SR-72 का मुख्य शस्त्रागार लगभग निश्चित रूप से हाइपरसोनिक मिसाइलें होंगी, जिन्हें अमेरिकी सेना इस समय सक्रिय रूप से विकसित कर रही है। कुछ लोग सही तर्क देंगे कि तेज गति की उड़ान में हाइपरसोनिक मिसाइलों को छोड़ने या लॉन्च करने के भारी दबाव और गर्मी के कारण लॉकहीड को कई इंजीनियरिंग चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि ये वही लोग थे जिन्होंने पहले YF-12 इंटरसेप्टर प्रोटोटाइप का इस्तेमाल करके मैक 3 से ज्यादा की गति से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को सफलतापूर्वक लॉन्च करने के विचार की व्यवहार्यता साबित की थी। लेकिन अगर आपको लगता है कि इस पैमाने पर नवाचार आसान है, तो दोबारा सोचें, तकनीकी चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। एक ऐसा विमान बनाना जो निरंतर हाइपरसोनिक वेगों पर जीवित रह सके और कार्य कर सके, इसके लिए अत्यधिक तापमान, विशिष्ट वायुदाब स्थितियों और गंभीर संरचनात्मक तनाव पर काबू पाना आवश्यक है। SR-77 की क्षमता का मूल इसका परिवर्तनकारी इंजन, टरबाइन आधारित संयुक्त चक्र TBCC प्रणोदन प्रणाली है। कोई भी एकल इंजन सबसोनिक और हाइपरसोनिक दोनों गतियों पर कुशलतापूर्वक कार्य नहीं कर सकता। इसीलिए SR-72 एक हाइब्रिड सिस्टम, कम गति के लिए एक पारंपरिक जेट इंजन और मैक 5 से ऊपर की गति के लिए एक स्क्रैमजेट इंजन का उपयोग करता है। यह कैसे काम करता है? टरबाइन विमान को जमीन से ऊपर उठाकर निचले वायुमंडल में ले जाता है। जैसे जैसे विमान ऊपर चढ़ता और गति पकड़ता है, स्क्रैमजेट उसे हाइपरसोनिक गति तक पहुंचाने का काम संभालता है। यह सहज परिवर्तन अविश्वसनीय रूप से कठिन है और यही एक मुख्य कारण है कि हाइपरसोनिक विमान इतने दुर्लभ हैं। इस परिवर्तन को प्रबंधित करने के लिए आवश्यक इंजीनियरिंग जटिल है। जैसे जैसे विमान गति पकड़ता है, अंदर आने वाली हवा इतनी तेज और गर्म हो जाती है कि वह एक पारंपरिक जेट इंजन को भी नष्ट कर सकती है। इसलिए टरबाइन को पूरी तरह से बंद करके बाईपास करना होगा ताकि स्क्रैमजेट को नियंत्रण में आने दिया जा सके। स्क्रैमजेट में स्वयं कोई गतिशील भाग नहीं होता और यह दहन के लिए वायु को संपीड़ित करने हेतु विमान की अत्यधिक गति पर निर्भर करता है। ऐसे वातावरण में जहां इंजन के अंदर हवा ध्वनि की गति से कई गुना तेज गति से प्रवाहित होती है, स्थिर दहन बनाए रखना तूफान में माचिस जलाने जैसा है। प्रणोदन चुनौतियां ही एकमात्र ऐसी बातें नहीं हैं जिनका उल्लेख करना उचित है। SR-27 को तीव्र वायुगतिकीय तापन से भी बचना होगा। हाइपरसोनिक गति पर विमान और वायुमंडल के बीच घर्षण से इतना अधिक तापमान उत्पन्न होता है कि पारंपरिक पदार्थ पिघल सकते हैं। SR-72 के एयरफ्रेम के निर्माण के लिए इंजीनियर उन्नत कंपोजिट और ऊष्मा प्रतिरोधी मिश्र धातुओं का उपयोग कर रहे हैं, जिनमें से कई अभी भी विकास के चरण में हैं। विमान के हर इंच को न केवल गर्मी बल्कि बार बार तेज गति से उड़ान भरने के कारण होने वाले फैलाव और संकुचन को भी सहना होगा। अब यह बात सर्वविदित है कि यह कितना अद्भुत है कि अमेरिका दुनिया के लगभग किसी भी स्थान पर हाइपरसोनिक निगरानी या हमला करने की क्षमता पार्सल पहुंचाने में लगने वाले समय से भी कम समय में भेज सकेगा। लेकिन विमान की अद्भुत क्षमता के बावजूद SR-72 अभी पूरा नहीं हुआ है। वित्त पोषण हमेशा सबसे बड़ी बाधा रहा है। हालांकि अमेरिकी वायुसेना के हाइपरसोनिक रोडमैप के साथ तालमेल है, फिर भी विमान और इंजन के पूर्ण विकास के लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था होना अभी बाकी है। शुरुआत में वायुसेना ने SR-72 में रुचि दिखाई और अब भी रुचि रखती है, लेकिन वायुसेना ने इस कार्यक्रम के लिए धन देने से इनकार कर दिया। Facing budget constraints, the service chose instead to develop the Northrop Grumman RQ-180 stealth UAV, anticipated to be less costly and complex to design and produce for ISR missions in contested airspace. Skeptics had their own side of the story. In February 2018, Orlando Carvalho, Executive Vice President of Aeronautics at Lockheed Martin, refuted reports of the SR-72's development, stating that no such aircraft had been produced. He added that hypersonic research was driving weapons development. According to him, as that technology matured, it could ultimately enable the development of a reusable vehicle. Prior to this, we may have referred to it as like an SR-72, but now the terminology of choice is a reusable vehicle. But ignoring skeptics, in November 2018, Lockheed Martin reported that a prototype of the SR-72 was scheduled to fly by 2025 and would be equipped to launch hypersonic missiles. Yes, apparently it was initially assumed that testing of the single-engine SR-72 prototype would begin in 2025, but now the operational readiness is presently targeted for 2030, all things being equal. To be honest, the likelihood cannot be ascertained as there are still enormous technological obstacles to be overcome. Sustained hypersonic travel produces temperatures that would melt most existing materials. To counter some of the challenges, new heat-resistant materials and cutting-edge composites are being tested. But the SR-72 has to do more than just hold up. It has to survive intense conditions for long periods, essentially flying through fire. So why all the urgency now? Why is hypersonic flight suddenly a top priority? The answer is global competition.
Both China and Russia are already experimenting with hypersonic weapons and glide vehicles. If the US doesn't keep pace, it risks falling behind not just technologically, but strategically. The SR-72 isn't just a fast plane. See it as a bold move to the US government to maintain American air dominance for decades to come. It's a message. We're still here, we're still ready, and we're still faster. The SR-72 isn't just about speed. It goes beyond that. It's about shrinking the reaction window. Hours would be turned into minutes. Data would be collected and action would be taken before the enemy can even respond. A machine this fast turns reconnaissance and retaliation into a single act, leaving the enemy guessing and command chains scrambling. But with that power comes new risks. The SR-72 isn't just a military asset. It can be said to be a diplomatic wildcard. Its existence alone, even though it's yet to be confirmed, shifts conversations in Beijing, Moscow, and other strategic capitals. As to whether the plane is already existing and flying in 2025, the Pentagon isn't saying anything, and maybe that's the point. Whether it's in testing or already operational, its shadow is doing the job. यह प्रतिस्पर्धियों को यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि वहां क्या है और वे इसे कब हकीकत में देख पाएंगे। जैसे जैसे 2025 नजदीक आ रहा है, दुनिया यह देखने के लिए उत्सुक है कि क्या अमेरिका और लॉकहीड मार्टिन विमानन के सबसे महत्वाकांक्षी विचारों में से एक को हकीकत में बदल सकते हैं और उड़ान के अगले युग की शुरुआत कर सकते हैं। यह भी ध्यान देने योग्य है कि हालांकि कई स्रोत अत्यधिक गोपनीय SR-72 परियोजना को डार्क स्टार नाम से संदर्भित करते हैं, यह वास्तव में गलत है। हालांकि इस विमान को कोई आधिकारिक उपनाम नहीं दिया गया है, लेकिन सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले उपनामों में से एक है सन ऑफ ब्लैकबर्ड। दिलचस्प बात यह है कि F-15 ईगल जैसे सैन्य विमानों को उपनाम देने की प्रक्रिया में आमतौर पर ऐतिहासिक परंपरा, व्यावहारिक विचारों और सेना या विमान निर्माता द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल का संयोजन शामिल होता है। हालांकि यह आमतौर पर तब किया जाता है जब वायुसेना किसी विमान को आधिकारिक रूप से स्वीकार कर लेती है। डार्क स्टार 2022 में रिलीज होने वाली फिल्म टॉप गन मैवरिक में दिखाए गए टॉप सीक्रेट सुपरसोनिक जेट का भी नाम है। हालांकि वह यान काल्पनिक है। यह सच है कि लॉकहीड मार्टिन ने फिल्म के लिए डार्क स्टार का एक नकली संस्करण बनाया था। यह प्रॉप 69.5 फीट लंबा और 5.5 फीट पंखों वाला था। इसके कुछ हिस्से, जिनमें कॉकपिट के अंदर लगे उपकरण और फ्लाइट स्टिक शामिल हैं, लॉकहीड मार्टिन के प्रोटोटाइप थे। इस मॉकअप का इस्तेमाल जमीनी दृश्य को फिल्माने और हवाई दृश्य पर काम करने वाली विजुअल इफेक्ट टीम के लिए एक संदर्भ के रूप में किया गया था। टेकोनफ और उड़ान दृश्यों के लिए एक F-18 का इस्तेमाल किया गया था, जिसे बाद में डिजिटल रूप से बनाए गए डार्क स्टार से बदल दिया गया। भारी बाधाओं के बावजूद लॉकहीड मार्टिन का स्कंक वर्क्स विभाग SR-72 की विशाल रणनीतिक बढ़त के बल पर आगे बढ़ रहा है। दुनिया में कहीं भी 1 घंटे के भीतर पहुंचने की क्षमता के साथ यह विमान टोही और त्वरित प्रतिक्रिया अभियानों के बारे में देशों की सोच को पूरी तरह से बदल सकता है। अगर सफलतापूर्वक तैनात किया गया तो SR-72 न केवल एक नया विमान होगा, बल्कि सैन्य विमानन में एक नए युग की शुरुआत भी होगी। देखने के लिए शुक्रिया। जब तक आप यहाँ हैं, अपनी स्क्रीन पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके हमारे दूसरे वीडियो भी देख सकते हैं। वहां मिलते हैं।